Good morning, everyone. A very good Good morning. morning. Good Happy Diwali, everyone. हैप्पी दिवाली. आई होप आप लोग सब बहुत इन्जॉय किए हो कल की दिवाली एंड मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. And if you did yesterday's assignment, the magic heart, so if you could share how did you feel? कि आपने जब अपने दिल से थैंक यू बोला तो आपको कैसा लगा अपने डिज़ायर्स के लिए, या सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के जब आपने थैंक यू बोला, हाउ डिड यू फील? Also, welcome to week 4, the final week. Let's do the running first, and then after the session, we'll do the sharing and question. I think so no one has any sharing. Yes. So, all of you all, please stand up. Yes, so my request to all of you is to please get up for a peak state programming. I'll be starting in 1 minute. I'm the winner. I'm the I'm the winner. winner. I'm the winner. I'm I'm the the winner. winner. Let's put in hand, please. Faster. Faster, 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 faster. The winner. I'm the I'm winner. the winner. I'm I'm the the winner. I'm winner. the I'm winner. the winner. Thank you, everyone. Thank you. I mean, कितना energy आ जाता है just in 1.5 minutes. So if in these days, if you have started feeling something different in your energy level, if you could share or write on the chat box how you feeling, because we are doing this every day and we are reprogramming our subconscious mind. Yes, Vanjali, I'm the winner. And my request to all of you is that even after this magic book session, every day in the morning when you get up, do this running. क्योंकि जब आप ये पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं, आपका मॉर्निंग में पूरा दिन वैसे ही जाएगा. एनर्जी, एनर्जी, ओनली एनर्जी यू विल हैव इन योर डे. So I mean, it's amazing. So today, let's begin our session with the prayer. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. And now I would request Sakshi to begin the chapter in Hindi. So first we'll read in Hindi today and then in English. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज का हमारा डे है डे 21 एंड जो ये चैप्टर है इट इज लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स और मैं इस चैप्टर में जो हमें बताया गया वो बहुत बहुत बार करती हूँ. सो टुडे का जो चैप्टर है जैसे आप ये एक डोर देख सकते हैं. देयर इज अ डोर ओपनिंग एंड मैजिक डस्ट गोल्डन डस्ट ऐसे नीचे गिर रहा है. सो सिमिलरली आपको आज समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि वेन एवर आप कुछ भी करिए, हाउ यू कैन बिफोर
स्टार्टिंग अ टास्क, कैसे आप ऑलरेडी उस टास्क को मैजिकल बना सकते हैं और आप एक मैजिक की दुनिया में घुस सकते हैं आप जब वो टास्क कर रहे हैं। जब आप टास्क करेंगे और जब वो खत्म होगा, कैसे आप पे मैजिक डस्ट, गोल्डन डस्ट गिरेगा, आज आपको वो पता चलेगा। इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल चैप्टर. So I would request someone to please nominate his or herself to read. Sakshi, I will. Neelam. Okay. Just a minute before we start, very big congratulations. We finished our week 3 and we have entered into week 4. So a big round of applause for each and every one present here. So let's begin the chapter. Yeah. Neelam ji, you can start reading. 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबिनिया से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और स्याही से कलम को डुबाने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। जीके चेस्टरटन। हाँ, लेखक। सबसे शुरुआत में हमें क्या बोला जा रहा है? This actually sets the tone of the entire chapter. आप देखिए, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। डेफिनेटली हम होते हैं, क्योंकि हम लोग ने मैजिक इंग्रेडिएंट चैप्टर में सीखा है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। अच्छी बात, भोजन के पहले आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबिनिक से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। बेसिकली वो ये बोल रहे कि दुनिया में कोई भी काम कर रहे, कोई भी काम, उसके पहले वो कृतज्ञ होते हैं। बी एड की वो किताब खोल रहे हैं, किताब खोलने के पहले भी मुझे पता है कि माय रीडिंग विल बी सो गुड टुडे। मैं जो 15 मिनट भी बुक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, इट विल बी सो अमेजिंग एंड वंडरफुल। तो आप सोचिए कि अगर वो एवरी स्टेप में कृतज्ञ हो रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि बिफोर रीडिंग अ बुक कौन कृतज्ञ होता है? मतलब ये कौन करता है? सबको तो पता है बुक ही तो पढ़ना है, क्या बड़ी बात है। बट नो, बिलीव मी, आप आगे जाके समझेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हर चीज तो आपको क्या चाहिए, हर समय आप खुश रहे, हर चीज अच्छे से हो, आप गुड फीलिंग जोन में रहे। वही है, ताकि आप गुड फीलिंग जोन में रहे, जो भी आप कार्य करें, जो भी, उसके पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम देंगे, मतलब बेहतरीन परिणाम। उसका मतलब क्या होता है कि आप पहले ही सोच लिए हैं कि आपका रिजल्ट बहुत मैग्निफिसेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वही आप सीखेंगे। तो जैसे ये ऑथर है जीके जी, वो जो करते हैं, एंड जो लेखिका बोली वो हम सबको करना है आज। प्लीज कंटिन्यू। हम चाहे जो भी करे, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक ग्लीबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो एक मिनट, एक चीज आपको वापस लेखिका समझाने की कोशिश कर रही है। देयर इज नो संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है, गुड लक नहीं होती। देयर इज नो कोइंसिडेंस, जो जाके आपको आगे पता चलेगा, जो एक मैजिक फॉर्मूला है। क्योंकि हमें अभी वापस बताया जा रहा है, सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। गणितीय रूप मतलब देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मूला जिसको फॉलो करना पड़ता है, उसी से ही कार्य होता है।
2 + 2 is equal to 4, 2 + 2 can't be equal to 5 ना। जैसे वैसे ही आपको भी ये बात समझना होगा कि जब भी जो भी बोला जा रहा है वो एक फॉर्मूला है जो आपको दिया जा रहा है, जिससे आपको आंख बंद करके विश्वास करके अपनाना है, ना कि आपको ये सोचना है कि सपोज अगर आप कुछ काम करने गए एंड उस समय वो काम बहुत अच्छे से हो गया बट यू डिडंट एक्सपेक्ट, और आपको कोई उस काम में मदद कर दिया तो वो और बहुत ज्यादा ही अच्छे से हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस था, ये इंसान तो आ गया मुझे मदद करने के लिए। नो, यू अट्रैक्टेड इट। आप ही रीजन है उस अच्छाई के लिए, प्लीज इस बात को समझिए। तो ये सृष्टि का नियम हमेशा गणितीय रूप से काम करता है। तो प्लीज प्लीज रिमूव दिस। अगर आपके अभी भी माइंड में है कि देयर इज कोइंसिडेंस, मैं मेरा गुड लक था कि ये हो गया, नहीं, ये सब मतलब दिस डजंट एग्जिस्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज कंटिन्यू। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिक के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर या आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपके जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है और ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों का नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों की आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता होना। तो आप देखिए, पायलट थोड़ी प्लेन उड़ाने से पहले कभी बोलता है आई होप आज प्लेन की विंग ऊपर उड़ जाए ढंग से, आई होप मेरी लैंडिंग ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसको तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है ना अंदर की, नहीं, आई एम 100% श्योर मेरी जर्नी बहुत अच्छी होगी, मैं सारे पैसेंजर्स को सेफली लैंड कराऊंगा और हम लोग डिपार्ट भी बहुत सेफली करेंगे। तो आप सोचिए, अगर वो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रखता, वो बोलता है आई होप ये हो, आप सोचिए गुड फीलिंग जोन में होप आती है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो कहाँ आती है, एंड के तरफ। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, आपको पहले कॉन्फिडेंस रखना होगा। जैसे हम बोलते ना आई होप उसका तबीयत ठीक हो जाए, या आई होप मैं जल्दी से पतली हो जाऊं, वो होप में ही रह जाते हैं हम लोग, वो कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं अंदर में। सो यू नीड टू स्टॉप सेइंग फर्स्टली वो होप कि आई होप ये हो, और ये कैसे होगी, आज की वंडरफुल जो हम लोग को लेखिका बताएगी उससे, बेहतरीन परिणाम से। क्योंकि आप पहले ही सोच लेंगे वाओ क्या अमेजिंग वे में मेरा कार्य होने वाला है, आई एम सो 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 ग्रेटफुल। नीड टू अंडरस्टैंड। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा था, आई वाज लाइक क्या है बेहतरीन परिणाम, क्या हर चीज में पहले से बोलूं। आगे जो आपको लेखिका बताएगी कि एक फोन कॉल के पहले भी आप बेहतरीन परिणाम कर सकते हैं। मतलब कैसे, इफ सपोज आपका किसी का फोन आया है एंड वो इंसान के साथ आपका हमेशा अच्छी बातें होती है, और कोई इंसान है जिसके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा की बातें, या यू डोंट वांट टू आंसर दैट पर्सनस कॉल बट यू हैव टू, देयर इज मजबूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि before answering the call आप ऐसे बोल सकते हैं wow I'm so grateful I had an amazing conversation with जो भी इंसान का नाम है, एंड बहुत हम लोग ने कोई मतलब बुरा भला नहीं कहा एक दूसरे को, एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। सो मेरे साथ ये नहीं था, मेरा एक मैंने बोला लेट्स जस्ट ट्राई। सो आई जस्ट मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, सो आई वाज लाइक ठीक है चलो डिसीजन आउटकम करते हैं, फिर फोन उठाते थे। आई वाज लाइक I had an amazing 1 hour conversation with my friend after days. हम लोग बहुत deep conversations किए, this that. आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उस फ्रेंड के साथ हमेशा deep conversations करती हूँ, बहुत कम होता है because that person doesn't like talking over call much. You will not believe that day. I was like मैं मस्ती में कर रही थी इस चीज को. I answered that person's phone. I did magnificent outcome, बेहतरीन परिणाम, and then I answered. We genuinely had more than an hour of conversation and we spoke about such wonderful things. कभी कभार होता है ना ऐसी बातें करते हो जो हमेशा याद रहती है, वैसा था। It was so beautiful, मैं आपको क्या बोलूं। So आप इस चैप्टर के हर एक शब्द को समझने की ट्राई करिए,
एंड डोंट क्वेश्चन कि कैसे होगा, बेहतरीन परिणाम होता क्या है. प्लीज ट्राई टू फोकस एंड अंडरस्टैंड, इट विल डेफिनेटली हैपन, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है. प्लीज कंटिन्यू. Change the page. Change the page. यशस्वी, प्लीज चेंज द पेज. बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं. आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल्स, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं. आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सा से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सा या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं. जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं. आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में. आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी. आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं. आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं. यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं. तो एक मिनट, आप देखिए, लेखिका ने तो एकदम भंडार दे दिया आप क्या क्या चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं इवन बिफोर हम वो करें. सो यू नो, आप हम लोग कितने बार बोलते हैं, अगर मैं आज गई और मुझे अच्छा टॉप नहीं मिला, शॉपिंग अच्छे से नहीं हुआ, ड्रेस नहीं मिला, यू नो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, जाने का मतलब क्या है. बट फ्रॉम टुडे यू गॉट दिस ब्यूटीफुल फॉर्मूला. तो आप क्या कर सकते हैं, जाने के पहले ही बोल दीजिए अपने आप को, वाओ आई हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. जो भी टाइप का ड्रेस चाहिए आपको, एंड जो भी कुछ एकदम डेप्थ में जाके बोल दीजिए कि वो हो चुका है, मुझे पता है, बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस. और आप देखिएगा, अगर आप फीलिंग्स दिए हैं ना, 110% आपको वैसी टाइप की ड्रेस मिलेगी, ये गारंटी है. प्लीज इस बात को समझिए. बी इट अ वेडिंग ड्रेस, कोई आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, आप कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं, जो भी आप टैक्स भरने जा रहे हैं, आपको चाहिए कि यू नो टैक्स का थोड़ा कम आए, जो भी हो, जस्ट गिव मैग्निफिसेंट आउटकम. वाओ आई एम सो लकी, इस बार टैक्स मुझे बहुत कम टैक्स भरना पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है, जो भी जो भी. प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि जब तक यू विल नॉट ट्राई दिस, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इस चीज में. आपको फर्स्ट कोशिश करनी होगी. तो आप छोटी सी चीज में कोशिश करिएगा. आप कभी शॉपिंग जाए तो आपको ऐसी कोई टॉप चाहिए तो पहले से ही बोल दीजिएगा. एंड फीलिंग्स प्लीज एहसासों के साथ बोलिएगा कि यस वाओ आई हैव गॉट दैट टॉप. अगर आप वही डगमगाएंगे ना, शायद से मिलेगा. क्या ये बेहतरीन परिणाम है, हो सकता है नहीं भी मिले. जैसे आप गए होप वाले जोन में, तुरंत आपका लेवल ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली. तो आपका डिसीजन है कि यू नो आपको एक्चुअली में अच्छा चाहिए वो टॉप, एंड आपको वो टॉप चाहिए कि आप ठीक है नहीं भी मिले तो क्या हो गया, वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू. तो आप सोचिए, आजकल हम लोग के घर में, सबके घर में पूजा था लक्ष्मी जी एंड गणेश जी का. सो यू नो इवन बिफोर डूइंग द पूजा आप बोल सकते हैं क्या बहुत अच्छे से पूजा हुई, स्मूथली पूजा हुई. एंड आप सोच रहे होंगे पूजा में कैसे कभी कोई रुकावट या कुछ आती है, पूजा तो हमेशा ढंग से ही होती है, भगवान की पूजा है. बट आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. सपोज आप सब कुछ रेडी कर लिए पूजा का, आप एक चीज भूल गए हैं, पूजा के बीच में पंडित जी को वो चाहिए, तो यू नो
कोई फैमिली मेंबर आपको टोक देगा, कोई आपको कुछ बोल देगा कि तुम ढंग से सामान नहीं रेडी कर सकती हो क्या, ये वो, तो आप सोचिए आपका मन तो खराब हो गई। वैसे ही बिफोर द पूजा अगर आप अच्छे से बोल दे कि वाह पूजा बहुत ढंग से हुआ है, सब लोग बहुत खुश थे, स्टार्टिंग से लेके अंत तक सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, हो चुका है, आपको बोलना है, तो अगर आप भूलेंगे भी ना वो सामान, वो इंसान कोई भी आपको घर में हो सकता है टोके ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, भूल गए, ले आओ तुम, आपको हो सकता है ऐसे बोले कोई। सो यू नो दिस इज द पावर ऑफ दिस मैजिकल फॉर्मूला, just make the thing magical even before it has start हो गई है। Please continue. You're on mute. आई एम सेइंग बेहतरीन से बोलना है ना। हाँ, बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। जैसे ऐसे से हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं, तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचने की कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल से मनाने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर देंगे। यदि आप अभिभावक हैं और आपके अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। तो आप देखिए आप जब भी कुछ करने जा रहे हो आपको बेहतरीन परिणाम करना है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। माय सिस्टर, तो शी इज इन थर्ड ईयर कॉलेज एंड शी इज इन द प्लेसमेंट सेल, मतलब वो सेल जो जॉब्स एंड ऑल ऑफर करती है। तो उन एक कंपनी आई थी, तो अराउंड 100 पीपल में से कुछ 10 या 20 लोग ही चुने जाएंगे फॉर द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड फाइनली द जॉब इंटरव्यू। तो क्योंकि मेरी बहन ने भी मैजिक का बुक पढ़ा है, वो भी सेशंस की हुई है, तो इवन शी डिड मैग्निफिसेंट आउटकम। यू वोंट बिलीव, वो फर्स्ट राउंड क्लियर की क्योंकि उन्होंने उसके पहले ही बोल दिया कि वाओ बहुत अच्छे से होने वाला है, मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुकी हूँ, अब मैं सेकंड राउंड के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। सिमिलरली सेकंड राउंड में की और वो अपने जॉब इंटरव्यू तक पहुंची। आप सोचिए अगर वहीं वो बोल देती कि कैसे होगा, 100 लोग है, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, कैसे होगा। तो आप सोचिए अगर वो डाउट करती, वो बोलती होप, आई होप हो, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होती तो उनके साथ ये होता नहीं। इट इज ऑल बिकॉज वो बिलीव कर चुकी थी कि हाँ ये हो चुका है, ये बहुत अच्छा हो चुका है। दैट वाज हाउ शी यूज्ड द मैजिक फॉर्मूला ऑफ बेहतरीन परिणाम, यानी कि मैग्निफिसेंट आउटकम। तो सिमिलरली आपको भी करनी है ये। प्लीज रिमेंबर, आपके गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है, डायरेक्शन आप देते हैं गाड़ी को कहाँ जाना है। सिमिलरली लाइफ का भी स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में ही है, आप डायरेक्शन दीजिए कहाँ जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो कार्य ठीक से नहीं हो तो आप ऐसे ही बोलिए कि हमको पता है ढंग से तो होगा ही नहीं, वहीं आप उसको अट्रैक्ट करें, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि कार्य बहुत अच्छे से हो तो बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल, द वर्क हैज बीन डन सो एफिशिएंटली एंड स्मूथली, हैज बीन डन मतलब वो हो चुकी है ऑलरेडी। सो यू हैव द स्टीयरिंग व्हील इन योर हैंड, आपका डिसीजन है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी, गुड फीलिंग जोन की बैड फीलिंग जोन। प्लीज कंटिन्यू।
अधिकतर यहीं से ना अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना में आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और इसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप एक सेकंड, अगेन द लेखिका इज रिपीटिंग, कोई चीज संयोगवश से नहीं होता है। मेरे पास एग्जांपल्स है चैप्टर में, क्योंकि आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस अ लॉट। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। देयर इज अ सोसाइटी नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल इन माय स्कूल। तो मैं उसके लिए मुझे सोसाइटी का पार्ट बनना था। तो हम लोग को एक दो राउंड क्लियर करके फिर पर्सनल इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद ही आप बन सकते हो। वेन एवर कोई भी चीज आती थी ताकि मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाऊं, उसके पहले कोई भी स्टेप उठाना था मुझे, मैं हमेशा मैग्निफिसेंट आउटकम की हूँ। मैं तक वो हम लोग जो सुबह पीक स्टेट रनिंग करते हैं ना, मैं वो भी की हूँ। एंड बिफोर सिटिंग फॉर माई इंटरव्यू अगेन मैंने पीक स्टेट रनिंग किया। मैंने बोला, तो सीनियर्स इंटरव्यू लेते हैं हम लोग की, तो सीनियर्स loved my answers. They asked me very nice questions. Even if the questions were tricky, I have answered them so well. I'm so grateful I'm part of the entrepreneurship development cell. And you will not believe. Okay, definitely I am part of the cell. And in the interview मेरी लेट थी, तो सुबह से उन्होंने बहुत लोग की इंटरव्यू ले ली थी। They asked me a question जो लोग ने सबसे पूछा था, and they told me that your answer has been by far the best answer till now. And जैसे ये चीज हुआ, मैंने आर्यन एंड यशस्वी को ये बात बताई थी, because I felt so good कि again and again मैग्निफिसेंट आउटकम मेरी लाइफ में काम कर रहा है। आप सोचिए, मैंने बोला था कि I hope they like all my answer, hope नहीं, they have liked all my answers, and they genuinely said this, your answer is by far one of the best answers. तो आप सोचिए, अगर ये मेरे साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, 110% आपके साथ भी हो सकता है। जस्ट ट्राई, कोशिश तो करिए। प्लीज कंटिन्यू। कहाँ से? जब आप बेहतरीन परिणामों जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आवाज आ अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो होए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो आप जब भी करना स्टार्ट करेंगे ना, एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है, एक बार स्टार्ट कर दीजिए और आपको रिजल्ट्स तो मिलेगा। उसके बाद तो यू विल नॉट स्टॉप। कॉन्स्टेंटली आपको लगेगा बस हर कार्य के पहले बोल दूं बहुत अच्छा हो गया है, फीलिंग्स दे दूं, वो कार्य तो एकदम जबरदस्त होगा। प्लीज बिलीव मी, इट एक्चुअली हैपेंस एंड यू विल नॉट स्टॉप।
अब हम लोग पढ़ेंगे 2 चीजें आज जो लेखिका आपको करने के लिए बोलेगी। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट है। एंड ये सच में ना असाइनमेंट नहीं, एक गेम है। इतना मजा आता है इसको खेलने में, क्योंकि जब खेलो आउटकम तो जबरदस्ती होता है। प्लीज कंटिन्यू। अगर आप नहीं आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए निरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें अपने बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी 3 चीज चुननी है। हो सकता है वो 3 चीज ऐसी हो जो तीनों ही आपको मतलब एकदम पसंद नहीं है, आप बस चाहते हैं कि वो अच्छा हो, या जो भी वो ऐसी 3 चीज भी हो सकती है, या कोई 3 सिंपल चीज भी हो सकती है। सिंपल मतलब आप अगर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आज ट्रैफिक एकदम ना हो, मुझे सब जगह ग्रीन सिग्नल ही मिले, सेफ वो होगा। अब घर से निकलने के लिए पहले बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत जल्दी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ चुकी हूँ, मुझे हर जगह ग्रीन सिग्नल मिला, आई एम सो ग्रेटफुल। बोलिए 100% वो होगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके मन में 1.1% भी डाउट होगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं, बिकॉज वो 1% चीज नेगेटिविटी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ। प्लीज इस बात को समझिए। एंड जब एक थोड़ा सा भी कंप्लेन या नेगेटिविटी होता है, हम लोग को क्या करना होता है, 10 टू ग्रेटिट्यूड लिखना होता है ताकि उसकी पार सेम हो जाए। यू टू अंडरस्टैंड दिस होल मैजिक फॉर्मूला। तो कोई भी 3 चीज चुननी है जिसमें आपको चाहिए कि उसके होने के पहले आपको चाहिए कि वो बहुत अच्छा हो, उसका परिणाम बहुत अच्छा निकले। प्लीज कंटिन्यू। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले। चेंज द पेज। या कोई भी काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन ये जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आम तौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थितियों में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम को की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत
कृतज्ञता की जादुई शक्ति की और मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, कभी भी ऐसा होना आपने बेहतरीन परिणाम किया ही नहीं कार्य की शुरुआत के पहले, एंड यू वर लाइक वाओ क्या रिजल्ट आ गया, मैंने तो किया ही नहीं। बहुत बार होता होगा एक्चुअल में ना, हम लोग जब ये चीज के बारे में पता नहीं था ना, उसके पहले हम लोग यही कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा था, हम लोग सोचे नहीं थी कि वैसा हो जाएगा और हो गया। तो कभी आप भूल जाए और रिजल्ट आ गया तो अपनी आंख बंद करके आप बोल सकते हैं, बंद अपने, जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन ये जादुई शब्द करे तथा महसूस करे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? अगर आपको कुछ अच्छा मिला है, रिजल्ट अच्छा मिला है, तो आपको उसके लिए भी तो कृतज्ञ होना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली थोड़ी रिजल्ट मिलने के बाद आप बोलेंगे अरे हो गया, अब क्या है, अब तो डन। नो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल इवन आफ्टर गेटिंग द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। प्लीज इस बात को समझिएगा, बिकॉज वो मिल चुका है आपको, जो आपको चाहिए था, आपको उसके लिए भी कृतज्ञ होना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी आप ये कार्य कर रहे हो, प्लीज आप ये मत फोकस करिएगा कि अरे अरे अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अच्छा हो रहा है क्या, देखते हैं क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप। नो, चार्ज फोकस ऑन कृतज्ञता। आप बिलीव करिए अंदर, आप बेहतरीन परिणाम के लिए बोल चुके ना, वो होगा। अगर आप वही जब आप फोकस करने लगते हैं ना, नेक्स्ट चीज क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, वो मुंह से निकलता ही है, ये चीज डाउट होता ही है मन में। और जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा होगा ये चीज, तब कोई डाउट ही नहीं है आपके मन में। आप इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करिए। So please believe me, it happens and it has genuinely happened always with me. I have another example. So there's another society known as Enactus in my college, and let's not go in elaborate details. I did the same thing and I'm again in the society. I did the peak state running. I said कि मैं 100% उस society में होंगी, जबकि इतने लोग interviews देते हैं, मतलब more than 300 people, उसमें भी मुझे विश्वास था कि मैं होंगी और मैं हूँ। So if I can do it again, I'm telling you, आप भी कर सकते हैं। प्लीज इस बात को बिलीव करिए। Try this. It is an awesome game. प्लीज आप अभ्यास कर लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले से ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इस बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 3 महत्वपूर्ण घटना से ज्यादा, मतलब आप लीजिए, लेखिका भी बोलिए सही है, बट मैंने ये ट्राई किया था कि फर्स्ट आई ट्राइड स्मॉलर थिंग। कोई एक फोन कॉल हो, मैं कुछ करने के लिए बैठ रही हूँ, वो सपोज जैसे आज क्या होता है, पूजा हो जाती है, फिर हम लोग गणेश जी लक्ष्मी जी को वहीं रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे, मेरे घर में एटलीस्ट नेक्स्ट डे स्थापना होती है। तो आप जब स्थापना करने जा रहे हो, अगर आपके यहाँ वापस आरती होती है, तो उसके पहले बोल दीजिए आज तो आरती बहुत अच्छी हुई है, वाओ व्हाट अ फीलिंग। और आप उस समय थैंक यू बोलिए, जब आप आरती कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की शुक्राना करते रहिए, तब आप देखेंगे कि एक्चुअल में आरती कितनी अच्छी हुई है। ट्राई इट फॉर स्मॉलर थिंग, ताकि आपका बिलीव बढ़ जाए। आप महत्वपूर्ण चीज में तुरंत जा सकते हैं, बट माय सजेशन इज कि आप छोटे छोटे चीज में ट्राई करिए। एंड अनएक्सपेक्टेड चीज आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप खाना बना रहे हैं, आप भूल गए बोलना कि आज तो मेरा खाना सबको इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं। सपोज ठीक है, आप भूल गई, आप यूज्ड टू नहीं है, तो जब किसी को अच्छा लगे वो आपके खाना बनने के बाद, कोई आपको आके बोले, तो आप बोल सकते हैं वाओ
जिसने भी आपको आके प्रेज किया, आई एम सो ग्रेटफुल कि इस बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी या यूनिवर्स, जिसको भी आपको बोलना है। सो प्लीज ये करिएगा, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। Thank you, Neelam ji, for reading the chapter in Hindi. Thank you so much. I will now request Yashasvi to please take over. Good morning, everyone. A very good morning. And as Sakshi explained us so beautifully about the magnificent outcome, I mean, this is one of my favorite chapters too. मतलब अगर मैंने मैजिक बुक की दुनिया में कोई मैजिक देखा है तो मैंने इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा देखा होगा. एंड सेम फॉर साक्षी. सो वाई बिकॉज मतलब वी बिलीव्ड इन दिस. मतलब आपको लग रहा होगा क्या यार ये क्या मैग्निफिसेंट आउटकम है, वाह बोल दो एंड हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकते हैं. तो यही तो बात है. इट्स जस्ट अबाउट योर बिलीफ बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. So now I would like someone to nominate themselves to read this chapter. I can. Can you please take it? Madhushri. Yes, auntie. Yes, Maharshi auntie, please continue. Day 21. Auntie, you're Day, new. day 21, magnificent outcomes. You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the I dip the pen in the ink. G.K. Castron, Yes. Chestron. Chesterton. Okay. 1874-1936 writer. Yes. 1 minute, auntie. So G.K. Chesterton said thank you before meal. ठीक है, मतलब उसने फूड के पहले थैंक यू बोला. वो तो हम सब अब करते हैं कि फूड के पहले थैंक यू बोलते हैं. But he said thank you before the concert, before dancing, fencing, painting, swimming. मतलब इतना कौन thank you बोलते हैं. बोलते हैं ना that you know there's no limit to thank you. आप कोई भी चीज के लिए जो भी कार्य करते हैं you can say thank you. It's just about how much gratitude you put in something. Gratitude की कोई अंत ही नहीं है. It is unlimited in this world. आप कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं. But why did he say इतना thank you? हर काम करने के पहले, मतलब literally हर काम, walking, playing, dancing, तब तो हमको याद भी नहीं आता है. Why? We'll read that in today's chapter. That what magics can happen when we start saying thank you, when we start being grateful before we do a work. Please continue, auntie. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton, am I right? Yes, yes, auntie. Thank you. Use the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcomes to a situation. But life does not happen by chance or because of stroke of luck. The law of the universe operates mathematically to be to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot does not hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. Yes, auntie. 1 minute.
So good luck doesn't happen by chance. Nothing is coincident in this world. I mean, it's all about the mathematical formulas which exist in this universe. So mathematical formulas doesn't mean that b square plus r square is equal to h square. मतलब ये जो formulas है ये हम लोग ने स्कूल में सीखा था, and we know that these formulas do not vary because ये जो है वो वही रहते हैं. Just like that, the laws that exist of the universe are based on the mathematical formula. If not based on mathematical formula, they are 100% scientific. I mean, imagine जो pilots होते हैं जब उन लोग plane चलाते हैं, so they don't be like यार भगवान आज मेरी प्लेन अच्छे से चल जाए, मेरा प्लेन क्रैश नहीं हो, जो भी इस फ्लाइट में है बस मैं उनको सुरक्षित पहुंचा दूं. I mean, it doesn't work like that, right? He knows the laws of physics and he knows how to take off and how to land. Because that was the law. Because before he came on this flight, he knew all these laws that how to handle when something happens. Similarly, जब आप कोई park में चल रहे होते हैं, and when you put one step on the ground and when you're taking the other step, you don't say, यार अगर मैंने ये step ले लिया तो क्या मैं उड़ने लग जाऊंगा? The law of gravity will stop working. Will I be able to walk? I mean, similarly, you can't say this because you know that whatever happens, the law of gravity exists and आप work करने वाले हैं. जब हम जमीन पे चलते हैं हमारे मन में डाउट थोड़ी ना आता है कि हम अचानक से उड़ने लग जाएंगे. So just like that, the law of universe exists. बस हम जानते नहीं हैं. And I mean भरपूर है. And अगर हम ये इस्तेमाल करने लगे, so we have no idea what magics can come in our life. And if अगर आप अनदेखा कर दे, you are like नहीं यार मतलब law of attraction है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नहीं believe करता ये सब magic में, मतलब हो रही है. So I mean you will never believe in that. And at the same time, you use it in your life, you will see magnificent outcomes. And we'll read it further in the chapter. Please continue, Auntie. A pilot does not, from here, no? A pilot does not hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the law. Auntie, you have read this. If you Yes, want Auntie. magnificent outcome. If you want magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feeling to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or a great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes, If it Auntie, helps you, 1 minute. So, आप सोचिए, I mean, there are so many things to say thank you for before you do something. मतलब ये सब चीज में हम magnificent outcome कर सकते हैं. छोटी सी छोटी चीज, जैसे आप जब
you know, when you go to a restaurant and you know that restaurant is working very busy, and wahan pe if they don't take reservations, so you can be like, wow, mujhe wo table mil gaya, main us table pe kha rahi hu, and whatever, you know, I've just got, everything is just vacant for me. I mean, इतने छोटे छोटे चीज आपके लाइफ में होने लग जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं है. So as Sakshi also said, start doing magnificent outcome with smaller things in life. So you know, even I did the first time, I you know, I just tried, I was like, देखते तो सही है, मतलब कैसे काम करते हैं magnificent outcome, and I did it with a phone call. So you know, one of my friends had called, and I mean, I had not spoken to that friend for a very long time, and you know, we were having a little misunderstanding. So before I call that person, I was like, you know, today my phone call is going to be superb. I mean, I'm going to talk to that person for 1 hour, and everything will go so smoothly. And अब imagine भी नहीं कर सकते, that person spoke to me for more than 1 hour, and the conversation was just so smooth. I mean, that day. एंड ऐसे नहीं कि मैंने अनदेखा कर दिया इस मैग्निफिसेंट आउटकम को. यू हैव टू से थैंक यू हैव टू बी ग्रेटफुल. अगर आप यूनिवर्स को ये साइन देते हैं कि नहीं यार, मतलब ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसमें क्या है, मतलब कोइंसिडेंट है यार, हो गया अच्छे से बात. नो, आई मीन, दिस एग्जिस्ट, दिस हैपेंड. सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस बिफोर दिस मैजिक इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यू. क्योंकि फिर यूनिवर्स को लगेगा कि आप उसकी कदर ही नहीं करते हो. So you can do it for anything. Even when you go for shopping, you can say thank you for the best dress I've got. आपको जैसी ड्रेस चाहिए अपने ओकेजन के लिए, आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं. So I mean, anything, birthday gift, your engagement ring, anything. Please continue, Auntie. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcome, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happened during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusion and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusion and thinking you might be in a trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yes, Auntie, you- 1 minute. 1 minute. So another time you can use, this is the most important part, magnificent outcome when something unexpected happens. So I'll give you an example. Few days back I had to do this assignment of a college, and मैंने अपने पूरा असाइनमेंट खत्म कर दिया ना, सबमिटेड. एंड रात को जब डेडलाइन खत्म हो गया था, मुझको सबमिट करने के बाद याद आया दैट यू नो आई एम नॉट सबमिटेड दिस पार्ट. So and then I was having a little bit of internet connection problem, so I could not resubmit it. So next day in the morning I texted my teacher that ma'am, you know, this is the challenge which I faced. And I mean, ek baar bhi, like, you know, it's written here, instead of jumping to conclusions or thinking you might be in trouble, I mean, मैं उस टाइम सोच सकती थी यार क्या होगा, because you know that was a very important part and my marks could have got cut and it's a college assignment. So I just kept saying, I mean, I did magnificent outcome before messaging my teacher. तो आप जो भी कार्य करते हो आपको उसके पहले करना है. अगर आप कार्य के बीच में करोगे, so I don't think you will get those results which you want. So it's always better if you do it before your work. So before texting my teacher, before messaging my teacher, the result which I wanted कि हाँ यार भगवान thank you, me teacher मेरा बात मान ली. And you won't believe, I mean, I just messaged her and I was like, ma'am, I'm so sorry. She just texted me, it's okay, I will look into it, you don't have to worry. I mean, I was so relieved, and just at that moment I kept thanking God. मतलब इतना जब आपके लाइफ में 2-3 बार ये होने लग जाता है ना, so you know कि हाँ, this exists, ये होता है.
तो ये सब जब छोटे छोटे चीज, I mean this was not a small thing because this was a really big thing for me. So I mean now I know and I use it in every sphere of my life and matlab, it's magical. Please continue, auntie. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking, this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asking to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the mail or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you ask for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcome. Yes. When you are great, So, auntie, 1 minute. So kitne baar, I mean, you, before we do something, we put so much negativity into it. So matlab, for example, अगर स्कूल से एक urgent email आ जाता है, today I want to meet you at this time for, I mean कोई parent को, तो सबसे पहले क्या चीज आता है आपके माइंड में, यार अब मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, अब क्या हो गया. I mean this is the first thought that comes into your mind. So, I mean, instead of that, instead of thinking that, you can always use magnificent outcome and say, wow, the teacher has called me to school. मतलब मेरे बच्चे के बारे में कितना praise करने वाला है, कितना बढ़ाई करने वाला है. तो you can start changing these situations into positive as soon as your perspective shifts. So this magnificent outcome actually starts helping you in these things. Please continue, auntie. if you miss your bus or train, Auntie, when you're grateful. when you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcome you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. यस, At the 1 मिनट beginning of the आंटी, 1 मिनट. तो आपको जो चाहिए जिंदगी में, मतलब whatever you want, कि अगर आज आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, एक फ्रेंड से मिलने भी जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ बाहर भी जा रहे हैं, वो मीटिंग आपको कैसे चाहिए, फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसे चाहिए, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, सो फॉर एनीथिंग आपको जैसे भी चाहिए, यार मैजिक की दुनिया में हो तो ये मैजिकल फॉर्मूला जो आपको मिल रहा है, आई मीन इट्स जस्ट ऐसे होते हैं मैजिक्स यहाँ पे. आपको बस कमांड करना है यूनिवर्स को, and no matter what happens in your day, it will absolutely go your way and you will never find yourself in any trouble or in any challenge, क्योंकि आप पहले ही बोल दियो कि आपको क्या चाहिए अपने दिन में. So I mean just try it for yourself. Please continue, auntie.
at the beginning of today? I think so. Madhushri auntie, you're on mute. Uh, yes, auntie, Mm. on mute. Yes. At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcome. You can choose three things that are important to you in your lives currently, such as job interviews coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally Humdrum. humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you would choose your drive to work, doing the Yes. ironing, going to the bank or the or post office, picking up the kids, paying the bill, or collecting the mail. Make a written list of the three situations you have chosen for magnificent outcome. Use magically power gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Yes, Dash so dash this dash. is one minute auntie. So this is the first task of the day. So at the beginning of today, मतलब आपको three situations choose करना है where you want to do magnificent outcome. So my request to you is that you start with small situations, maybe while you're picking up your kids from school. तो अभी तो हम सब घर पे है. So for जब आपका आज अगर आपका कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, या यू हैव टू डू एनी कॉलेज असाइनमेंट, या आप कुछ कुछ भी काम कर रहे, कुकिंग भी कर रहे हो ना, तो उसके पहले आज बोल दीजिएगा कि एवरीबडी इज लविंग माई फूड, वाओ. So start with small things and then you'll start believing in the bigger things which will be on your way. So any three things. You can take more than three things also, but I think first start with three things today. Please continue, auntie. For the second step of this magical practice, we are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcome as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails or three letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcome on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. You cannot do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcome you will have in your life as a matter of course. But practice it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yes, so the Magic. second, 1 minute, Auntie, thank you. So the second step of today's magical practice is that you need to choose three unexpected things. Unexpected मतलब जैसे कोई फोन कॉल आ रहा है, तो उसके पहले आपने कर लिया कि आपको वो फोन कॉल कैसा चाहिए. बहुत बार होता है ना कि हम वी वांट द फोन कॉल टू बी आवर वे, तो you can do that, or you can do before opening your emails. So a few days back I had this test in my college, and I really wanted full marks in that exam because of my internal assessments. So मैंने बस I said that thank you God, मुझे इस एग्जाम में full marks मिल गया है. And I started doing my magnificent outcome. So I keep doing it, मतलब जो for whatever I want in my life, whatever results I want to see. And you won't believe कि परसों ही मुझे मेल आया that I got full in that exam, and I was so happy. मतलब I was celebrating. मैं जश्न मना रही थी कि वाह यार, मतलब क्या मैजिक की दुनिया है ये, मैजिक सीरियसली.
So I mean, all of you can do this. And मतलब एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, just like Sakshi said. I mean, she and her sister saw magics in their life. So इसकी कोई अंत ही नहीं है. You can never do it too much because you know there is so much. Please continue, Auntie. Magic practice number 21. Auntie, are you on mute? Sorry. It's okay. Sorry. Thank you. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome too. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happens during the day. Yes, so today at the beginning, after this session, you need to choose 3 things or situations that are important, जहाँ आपको magnificent outcome चाहिए, and you need to write that thank you for the magnificent outcome too, and complete the sentence, whatever you want. And the second step is you need to choose 3 unexpected events, and before that happens, you need to mentally say whatever result you want to see. And magic rock practice and count your blessings, as the author is repeating every day since 20 days that we need to do it every day. तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ को तो every day कीजिएगा and don't miss it, क्योंकि आपकी magic की momentum जो है इन दोनों चीज़ से है. That is why it's repeated every day so that it's reprogrammed in our subconscious mind. So thank you, Madhushri Auntie, for reading this chapter so nicely for all of us. And now I would request Aryan Raj to take over. Thank you, Yashashvi. Thank you. Hello, good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully in both the languages, English and Hindi. And thank you, Neelam Auntie and Madhushri Auntie, for reading the chapter so nicely and patiently. So I hope you all had an amazing day yesterday and you all enjoyed Diwali a lot. So so good morning, everyone. तो आज का जो chapter है, that is, we have been talking about that chapter a lot, but as we have come in the last phase of our dreams week, like as we said कि ये dreams week था कि इसमें हम लोग अपने dreams को कैसे पाएंगे, वो था ये week में. तो the most important thing that we haven't spoken about till now, that is also regarding this chapter, is forgiveness. Like आपका जो forgiveness है, like if you don't, what will happen if you don't forgive? Like आप forgive जब नहीं करते क्या होता है? It's like it is equivalent to having the charcoal in your hand and thinking कि सामने वाला जल रहा है. आप गरम चारकोल अपना हाथ में, जो कोयला होता है, गरम कोयला अपने हाथ में रख के रखे हो और सोच रहे सामने वाला जल रहा है. और you can also put it in that way कि आप जहर पी रहे हो और expect कर रहे हो कि सामने वाला मर जाए. So it doesn't work like that way. If you actually want to achieve your dream, you have to leave this baggage that you're carrying. Like कि what do people think about me? इसने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने इसके साथ ये कर दिया. This is all the baggage. It's okay. We are all humans. We make mistakes. Accept it and we have to move on. This is like for example, आपको अगर माउंटेन चढ़ना है, यू कैरी योर बैकपैक. सो वो बैकपैक में जितना ज्यादा बैगेज होगा उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होता है क्लाइंब करने में. तो वैसे ही जितना ज्यादा आप लोग का मिस्टेक्स अपने पीठ पे रख के रखोगे या फिर खुद का मिस्टेक्स के बारे में सोचोगे, उतना ही आपको अपना ड्रीम, दैट इज द माउंटेन्स पीक, वो पहुंचने में डिफिकल्टी होगा. सो टुडे वी लर्न हाउ टू फॉरगिव पीपल. तो when I learned this forgiveness visualization, it was Michhami Dukadam.
day, like that day is called Forgiveness Day. Like Jain celebrate that day for forgiveness. So it was a very special day for me as well when I learned that forgiveness. So आज हम लोग forgiveness करते हैं. Whenever you think कि someone has made a mistake or done anything to you, please do this. Like आप जैसे ये visualization करेंगे, you won't even feel anything about that person. मतलब कि neither good nor bad. Like right now you might be having negative feeling, you'd be having positive feeling for yourself. Excuse me, 1 second. Okay, I'm really sorry. Yeah. So for today's visualization, I want you all to again please uncross your legs, like sit in a straight position and don't cross your hands and close your eyes. आप लोग तब तक मत खोलिएगा जब तक मैं नहीं बोलता हूँ आपको. I'll give you the command to open your eyes. So, and if I don't speak for a long time, don't think yeah, I'm on mute or your audio is not working. It is because I'm giving you time to think of that person or the mistakes. So I want you all to sit straight and close your eyes and take 3 deep breaths. So this forgiveness is divided into 3 phases. First step is ourselves. So now tell yourself, we shall accept ourselves. आप अपने अंदर देखिए, like close your eyes and feel the body inside you. And tell yourself, we want peace in our soul. Peace be there in our body and mind. I am a divine soul. I attract love, happiness, and fulfillment. I am healing. I deserve the best things in life. Today is the best day of my life. Smile करते हुए आप बोलिएगा. Today is the best day of my life. I am child of God. I forgive myself. I forgive myself for my past mistakes. It's okay to make mistakes. I learned so much from my mistakes. Now imagine yourself in your dream house. How are you feeling? Today you have forgiven yourself. You're in your dream house. Imagine your best vacation. Imagine the place where you want to go for vacation. You are spending the best time of your life. You don't have anything going around in your mind. You're with your partner, your children, your parents, in your best health. This is the best phase of your life. You are attracting best health, best relationship. अपने आप को बोलिए, I love you, I love you, I really, really love you. Today I have forgiven myself and accepted myself more. आज मैं खुद को माफ करता हूँ और खुद को एक्सेप्ट करता हूँ. जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ. Now everyone join your hands and repeat with me.
Om Shanti 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 Om. 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 Thank you, thank you, thank you. अपने आंखें बंद ही रखिएगा. Now we'll forgive other people. Now think of the people जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपका लॉस किया, जिन्होंने आपको पेन पहुंचाया है. Think of all the names that's coming on in your mind. जिनका भी नाम आ रहा है उनको इमेजिन कीजिए. सोचिए आप और वो लोग सब एक रूम में हैं. If there are 5 people, those 5 people are in the same room with you. वो लोग पांचों सेम रूम में. अगर 10 है तो 10 सेम रूम में है. Think of the people who have hurted you. Now keep your right hand in your heart or say hello heart and say hello to the people in your room. मतलब hello to the people who have caused pain are in your room. Say hello to them. वो लोग की आत्मा को नमस्ते बोलिए. Tell them it's okay. Everyone makes a mistake. I understand. I forgive you for causing pain to me. मैं तुम्हें आज माफ करता हूँ कि तुमने मुझे कोई भी दर्द दिया. तुम्हारे वजह से मुझे कोई भी तकलीफ हुई. मैं तुम्हें माफ करता हूँ. May you be guided in the right direction. मैं इच्छा करता हूँ कि तुम्हें सही रास्ता मिले. May peace prevail your soul. तुम्हारे आत्मा को शांति मिले. I forgive you. I forgive you for all your mistakes. I want you all to again join your hands and say Om Shanti 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 Om. 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 Om Shanti 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 Om. Say thank you, thank you, thank you. Don't open your eyes. अब आप इमेजिन कीजिए जो भी लोगों को आपने परेशान किया है, आपने दुख पहुंचाया है, आपने कभी किसी का लॉस किया है या आपने किसी को हर्ट किया. दिस माइट बी द सेम पीपल हु ट्रबल्ड यू. आपने जिनके बारे में अभी सोचा था, नोइंगली और अननोइंगली आपने भी उन्हें कभी ना कभी हर्ट किया होगा विथ योर वर्ड्स और एक्शंस. थिंक ऑफ द पीपल जिन्होंने आपको हर्ट किया है. अब वो आपने जिनको हर्ट किया है और वो सारे लोग एक ही कमरे में आपके साथ है अभी. आप वापस अपने हाथ को हार्ट में रखिए और स्माइल कीजिए और say to yourself, I am a divine soul. We are children of God. I am a divine soul. We all are children of God. We all are energy. Atma Namaste. Spiritual revelation takes time, process and mistakes. जो आत्मा का रेवोल्यूशन है उसको टाइम लगता है, उस गलती करने पड़ते हैं तब सीखता है. Ask for sincere forgiveness. वो लोग से एकदम हाथ खोल के ask for forgiveness.
Forgive me for the pain that I caused to you. मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कोई भी अगर तकलीफ दिया हो तो. अगर मैंने कभी भी तुम्हें कोई दुख पहुंचाया होगा तो मुझे माफ कर दो. Think of the people जिसको you're meaning it, the people you have hurted. Think of them, think of their faces. I look for sincere forgiveness. दिल से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, दिल से. I promise after seeking today's forgiveness, I won't repeat the same mistakes. मैं वापस ये गलती या नहीं करूंगा आज के बाद. I am sorry, I am sorry, I am sorry. I love you, I love you, I love you. I really, really love you. मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म. Michhami dukkadam means forgiveness, asking for forgiveness. Man vachan kaya se michhami dukkadam. Now again, I want every one of you all to join your hands and say Om Shanti 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 Om. 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 Thank you, thank you, thank you. And whenever you all feel comfortable, you all can open your eyes. And when you all will be opening your eyes, say thank you and I love you. Okay, so now I want everyone you all to open your eyes and please share if you all felt something different. You all can unmute and say, or you all can write in the chat box. Before sharing, let's do today's Shukrana and dance, and then we'll do the sharing. So I want you all to join your hands and close your eyes again. Thank you, God. I woke up early and fresh. Thank you, water, for keeping me clean and hydrated. Thank you for the fresh air that I breathe. Thank you, my parents, for loving me, caring about me, supporting me, and always fulfilling my demands. Thank you, my friends, for checking on me, loving me, entertaining me. Thank you, my workers, for always helping me. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully. Thank you to all the participants for coming here and believing in us. Thank you, God, for my family's safety, good health, and prosperity. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Aaron, for the wonderful visualization. So, since I'm also a Jain, every year we do Machami Dagaram, and I ask forgiveness from everyone. And it's so beautiful. And forgiveness is the biggest sadhana. So, I think let's first dance on our song and then do our sharing. So it's 9:16. हम लोग 9:18 तक वेट करेंगे. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या शेयरिंग है तो देन हम लोग सुन लेंगे. और आप कुछ भी यू कैन शेयर एनीथिंग. इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कल अगर आपने हार्ट मैजिक किया तो आपको उससे रिलेटेड शेयर करना है.
अगर प्रीवियसली कोई मैजिक हुआ है या यू नो आपने कुछ डिफरेंस फील किया है कोई भी चीज करते समय, यू कैन शेयर दैट आल्सो. Forgiveness is not अब दूसरा को माफ कर बी this is these things are selfishness. Like आप अपने selfish हो, like if you're forgiving someone this is for yourself, so it's better to forgive someone. Like if you hold on to something then you're attracting it. अब आप किसी चीज को अगर hold on करके रख जाएंगे and you're saying कि I don't think about it, it's not true. We all know कि अगर कुछ चीज को hold on कर जाते तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलता ही रहता है. Like when we look at that person, when we hear that person's name, आपका दिमाग में वो चीज चलता ही है. But as soon as you forgive it, like from your heart, why did I tell you to put your hand in the heart? क्योंकि आप दिल से फिर उसको माफ कर रहे हो. Like you're feeling your beat when you're forgiving that person. So forgive it for yourself. So because you want to achieve your dreams, that person is coming in between. वो भी बिना कुछ किए आप उसको आने दे रहे हो अपने ड्रीम्स के सामने. So forgive someone for yourself, not for the other person. So I think so किसी के पास कोई क्वेश्चन या शेयरिंग नहीं है. So thank you so much for coming. Hope you all have a magical day. See you all tomorrow. Thank you.